Hello everyone. Once again welcome to our Facebook group The Bihar Teachers History Makers Mera Mobile Meri Shiksha. The topic of today's video lesson is Sehnai of Bismillah Khan, and this topic has been taken from class 9th book A Panorama English. In this video, at first we will discuss about Ustad Bismillah Khan, then we will go through the lesson. Ustad Bismillah Khan, the great Sehnai maestro and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna in 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar. In spite of having travelled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान सहनाई वादक थे. उन्हें 2001 में भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है 2001 में उन्हें मिला, और उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के म्यूजिशियन फैमिली में हुआ. उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की, फिर भी उन्हें भारत के बनारस और दुमराव नामक जो शहर थे सबसे अधिक प्रिय थे. उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में एक लंबी बीमारी के पश्चात हो गई. राज्य सरकार द्वारा उनको राज्य शोक दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनकी मृत्यु पर एक दिन का नेशनल मॉर्निंग मीन्स राष्ट्रीय शोक घोषित किया. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. The pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Instrument so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named Sehnai. Students, एम्पेरर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को दरबार में बजाने पर रोक लगा दिया क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश थी. उसके बाद पुंगी नाम के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना मना हो गया. कुछ लोगों ने फिर सोचा कि इसकी टोनल क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए. फिर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली के जो कि बार्बर फैमिली से थे, नाई परिवार से थे, उनमें से किसी एक ने सोचा कि इसकी टोनल क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए. तो उन्होंने एक छेद वाला पाइप लिया जो कि पुंगी से ज़्यादा चौड़ा था और लंबा था, और उसमें 7 होल्स किए, उसमें 7 छेद किए. और जब उन्होंने उस होल्स को ओपन करके और क्लोज करके बजाना शुरू किया तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ. और ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, और उन्होंने जब इस नए इंस्ट्रूमेंट को दरबार में पेश किया तो सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे वो इम्प्रेस हो गए. और जैसा कि कहा जाता है, और उस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम इस प्रकार पड़ा, जैसा कि वो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले शाह के दरबार में चैम्बर में बजाया गया और वो एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया सहनाई. The sound of Sehnai began to be considered auspicious.
For this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto this classical stage goes to the Ustad बिस्मिल्लाह खान। सहनाई का जो आवाज़ था, साउंड था, वो बहुत ही शुभ ऑस्पिसस माना जाने लगा। ऑस्पिसस मीन्स होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड इसी वजह से, इसके ऑस्पिशियस साउंड की वजह से इसको टेम्पल्स में, मंदिरों में और नॉर्थ इंडिया में शादियों में बजाया जाने लगा। शहनाई नौबत का भी एक पार्ट बन गया। नौबत होता था उस टाइम शाही परिवार में, दरबार में, राजाओं के दरबार में 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का एक समूह होता था, जो जिसे 9 अलग अलग संगीत बजाने वाले लोग होते थे। उसमें से एक सहनाई भी होता था। और क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इस सहनाई को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old boy, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy had travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के थे तो वो दुमराव, बिहार के दुमराव शहर के नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वो उसके ही वहाँ पे जो पास में ही मंदिर था, एक बिहारी जी टेम्पल, वहाँ जाके भोजपुरी चैता गाया करते थे। जिसके बाद उनको एक बार वहाँ के लोकल महाराज जो हैं 1.25 kg का एक लड्डू देते हैं प्राइज के तौर पे, तोहफा के तौर पे। और 80 इयर्स पहले ऐसा होता है। और आफ्टर 80 इयर्स वही छोटा सा 5 वर्ष का लड़का जो अब 85 इयर्स का हो गया है, उसको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाता है। चूँकि उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ, वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन, बिहार के संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करते थे। उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान था, जो कि एक बहुत ही फेमस नहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में। उनके फादर पैगंबर बख्श, और उनके और भी जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे और भी जो उनके पूर्वज थे, वो भी सहनाई वादन किया करते थे। यहाँ बुक में सहनाई का पिक्चर भी दिया गया है। और पुंगी पहले इस तरह से होता था, जो हम लोग कई बार सपेरा के पास देखते हैं, इस टाइप से फिगर दिया हुआ है। द यंग बॉय टुक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Sehnai. Ali Baks would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours. Slowly he started getting lessons in playing instruments and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya, the banks of Ganga, became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sehnai. और बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक को अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में म्यूज़िक की बजाने की शुरुआत कर दी। जब वे 3 साल के थे तो वो अपनी माँ के साथ अपने नानी के यहाँ, मैटरनल अंकल्स मीन्स मामा के घर जाते हैं, जो कि बनारस में था, जिसको अभी वाराणसी कहते हैं।
बिस्मिल्लाह अपने अंकल को शहनाई वादन करते हुए देख के बहुत ही फैसिनेटेड आकर्षित हो जाते हैं और जल्द ही बिस्मिल्लाह भी उनके अपने अंकल अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल जाने लगे, जहाँ पे उनके अंकल अली बख्श वहाँ शहनाई बजाया करते थे और अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों बैठकर उनको देखते और सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स और धीरे धीरे वे भी उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ लेसन पार्ट सीखने लगे और प्रैक्टिस भी करने लगे। और फॉर ईयर्स टू कम, सालों यहाँ आने के कारण वहीं पास की मंदिर बालाजी और मंगला मैया मंदिर और उस गंगा का जो किनारा था, बैंक्स ऑफ द गंगा, उस यंग अप्रेंटिस, ये छोटे से नवसिखिया बच्चे का सबसे फेवरेट स्थान हो गया, जहाँ वो सॉलिट्यूड अकेले में बैठ के घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे? शहनाई वादन करने की प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ जो फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा की जो बहती हुई पानी की जो आवाज़ थी, उससे इंस्पायर होके बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे ऐसे धुन और राग का इन्वेंशन किया जो कि शहनाई के से मतलब होना संभव नहीं था, लेकिन उनसे इंस्पायर होके उन्होंने शहनाई से भी बहुत सारे रागाज मीन्स उससे जो ट्यून निकलते हैं उसका इन्वेंशन किया। अभी तक हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में पढ़ा। अब इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे का लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से देखें और समझें। इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ I will also discuss about the rest chapter and I'll give you the hard words and question answers. Till then, keep watching and keep learning. Thank you. That's all.